हेलो टीवी स्कूल फ्रेंड्स, मेरा नाम है लवलीन सूद एंड मेरा सब्जेक्ट है साइंस। साइंस का ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 5 ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰਸ ਲਗਾਏ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ 5 ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਜੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਫੋਰਥ ਟਾਈਪ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਫਿਫਥ ਜੇ ਟਾਈਪ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ? ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਫਰਸਟ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਲ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਦ ਵੀ ਹੀਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੀਥੇਨ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। और ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ એનર્ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 70% ਪਾਰਟ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਟਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ 'ਚ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? એનર્ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਪਲੱਸ એનર્ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, एनर्जी बाहर निकलना दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, हैंस रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एच भी की हो रही है? एनर्जी बाहर आ रही है, इसलिए आप इन्होंने की बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एच कार्बन 6 इसलिए आप 6 ना मल्टीप्लाई करता, हाइड्रोजन 12 से इसलिए इन्हों भी आप 6 ना मल्टीप्लाई करता। बट इतने ऑक्सीजन काउंट करो, 12 + 6 8 कितना हो गया? 12 + 6 18। इस साइड से 18 ऑक्सीजन ने, बट इतने कितने ऑक्सीजन ने? सिर्फ 6। तो इनू आप कितना मल्टीप्लाई करिए? 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 12 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? 18 ਆਕਸੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਫਟਰ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਥਰੂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਲੱਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਟੂਡੇ ਆਰ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ?
कॉम्बीनेशन रिएक्शन जो दो चीज़ां आपस में मिल के एक चीज़ बनाते मतलब दो रिएक्टेंट आपस में मिल के एक प्रोडक्ट बनाना बोलते कॉम्बीनेशन। अगर अपने को रिएक्टेंट टुट गए और टुट के दो या दो तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनावे उन्होंने की बोलते डीकंपोजिशन। डीकंपोज मतलब टुटना। जो कोई चीज़ टुट के दो या दो तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती उन्होंने बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो अज जो टॉपिक है वो कितने डीकंपोजिशन रिएक्शन से जो टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं दैट इज डी कंपोजिशन रिएक्शंस। इस आप एग्जांपल लवांगे फेरस सल्फेट दी। फेरस सल्फेट की है FeSO4। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला की होंगे FeSO4। फेरस मतलब फेरिक आयरन आप गल कर रहे हैं। सल्फेट आयंस नाल लगे हुए ने। फेरस सल्फेट फॉर्मूला पता होना चाहिए सब दे, ठीक है। जो फेरस सल्फेट को आप हीट करांगे, जब अपन हीट करांगे तो अपने को की बनेगा फेरिक ऑक्साइड बनेगा। एक तो Fe2O3, एक सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। सल्फर डाइऑक्साइड सफोकेटिंग होंगी है, घुटन होनी शुरू होती है। जो गैस बाहर आती है तो सानू साह लैन प्रॉब्लम होती है क्योंकि घुटन करती है। सो सल्फर डाइऑक्साइड जी गैस है वो जी थोड़ी की होती है पंजर स्मैलिंग होती है जिसके घुटन होनी शुरू होती है। सफोकेटिंग गैस है, ठीक है। Fe2O3 सफोकेशन मतलब घुटन होनी शुरू हो जानी, ठीक है। Fe2O3 आप बोलते फेरिक ऑक्साइड, इन्हों आप बोलते सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर है एक लगा हुआ, ऑक्सीजन किन्ने दो, सल्फर दो ऑक्सीजन डाई ऑक्साइड। डाई मतलब होंगे टू, ਇਹਦਾ मतलब की हो गया नाम ਇਹਦਾ होगा सल्फर ट्राईऑक्साइड। सल्फर ट्राईऑक्साइड। सब तो पहले आप लिखता है फेरस सल्फेट लिखता है। फेरस सल्फेट है FeSO4, ठीक है। ये फेरस सल्फेट है जो पहले हीट किया, जिस सिंबल ऑफ हीट आप हीट कर रहे हैं, ठीक है। सिंबल है हीट का, डेल्टा का साइन पा देंगे। मैं तो पहले भी दसा सी कि जो डेल्टा का सिंबल है मतलब आप हीट कर रहे हैं, ठीक है। जो हीट करते अपने बनता फेरिक ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला Fe2O3, ठीक है। दूजा बन रही सल्फर डाइऑक्साइड, तीजा बन रहा SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड। आ दो चीज तीन प्रोडक्ट्स अपने को बन रहे हैं। रिएक्टेंट किन्ने सी 1, प्रोडक्ट किन्ने बन रहे हैं 3। ਇਹਦਾ मतलब एक रिएक्टेंट टुट के तीन प्रोडक्ट बना रहे। एक रिएक्टेंट टुट के तीन प्रोडक्ट बना रहे, इनू आप की बोलते हैं दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। हम की बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। हम बैलेंसिंग देखो, आयरन किन्ने इतने 2, इस साइड की किन्ने 1, इनू 2 ना मल्टीप्लाई कर दो। किन्ना मल्टीप्लाई करता 2 ना, ताकि ये भी आयरन किन्ने हो जाए 2 हो जाए। सल्फर देखो किन्ने 2, सल्फर देखो 1 + 1 किन्ने हो गए 2। ऑक्सीजन काउंट करो 8, इस साइड से काउंट करो 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8। तो इनू आप कहेंगे बैलेंस होगी। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इनू आप बोलता बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्योंकि ये जो नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट दे दैट आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट ते प्रोडक्ट्स के एटम्स की ने इक्वल ने, इसलिए अपन बोलते बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लीयर है। बट आप डीकंपोजिशन रिएक्शन की गल की सी। डीकंपोजिशन रिएक्शन वो होंगी है जिस एक रिएक्टेंट टुट के दो या दो तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है। तो एक रिएक्टेंट से उन्हें टुट के दो या दो तो ज़्यादा मतलब 3 प्रोडक्ट बनाए हैं। तो यह मतलब कि रिएक्शन डीकंपोजिशन। डीकंपोज का मतलब ही होंगे टुटना। क्लीयर है। डीकंपोजिशन रिएक्शन की एग्जाम्पल मैं क्लैरीफाई होगी होनी है। तो हुण अपने कोल की है, मैं तुहानूं एक होर चीज़ दसनी है। फेरस और फेरिक का मतलब की होंगे। मैं इत्थे फॉर्मूला दिता फेरस सल्फेट, इत्थे भी Fe है, Fe तो इत्थे भी है, फिर नाम फेरिक क्यों आया। क्लीयर है। क्वेश्चन अपना है इनू फेरस क्यों नाम दिता और इनू फेरिक नाम क्यों दिता। जो तुसीं देखोगे फेरस दे विच Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होंगी है और जो फेरिक होंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होंगी है। तुसीं 9th क्लास दे विच पढ़ के आ चुके हो फेरस की होंदा है और फेरिक की होंदा है। सो रिमाइंड ही करवा रही है, रिपीट कर रही हूँ कि जिहड़ी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जिच होंदी है Fe ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ बोलते हैं फेरस, जिहड़ी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होंदी है ਉਹਨੂੰ बोलते हैं फेरिक। हुण ये ऑक्सीडेशन है कितनी +2 है प्लस किवें पता चलेगा। आ जिहड़ा फॉर्मूला दिता होया Fe2O3 ਨੂੰ इस तरह लिखा हुआ है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ इस फॉर्मूले ਨੂੰ दो पार्ट्स डिवाइड कर देंगे हैं। ਜਿਹੜਾ पहला वाला पार्ट है उत्ते ਆਪਾਂ चार्ज पा देंगे पॉजिटिव, तो उस तो बाद वाले उत्ते किहड़ा चार्ज पा देंगे नेगेटिव। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ Fe ਉਹ हमेशा की होएगा पॉजिटिव होएगा तो ऑक्सीजन की होएगा नेगेटिव होएगा। क्लीयर है। हुण ਆਪਾਂ देखते पे हैं ये नीचे की है 2 और 3। ਜਿਹੜਾ फॉर्मूले च ਆਪਾਂ 2 और 3 लिखे इन्हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करना है किवें आ 2 इधरली साइड ते चल जाएगा, आ 3 इस साइड ते चल जाएगा। तो हुण देखो
जो 3 ऊपर जाएगा की बन जाएगा Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। ऑक्सीजन ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਆਲਰੇਡੀ ਸੀ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ Fe2O3 ਚ ਆਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ FeO ਕਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੇ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਜੇ ਆਇਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਫੈਰਿਕ। अगर आयरन अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ +3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢੇ 3 ਕੱਢੇ ਤਾਂ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ Fe3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਫੈਰਿਕ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਰਸ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, Fe2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੈਰਸ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ FeSO4, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ FeSO4 इसी तरह, ठीक है। सल्फेट इक्को चीज़ है इसलिए तोड़ना नहीं है। नॉर्मली बच्चे की करते सल्फर ਨੂੰ अलग कर लेंगे, ऑक्सीजन अलग कर लेंगे, आप इदा नहीं करना। सल्फेट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਦੂਜੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਲਫੇਟ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ, ठीक है। नाइट्रेट NO3 उत्ते कितना चार्ज होंदा है 1 नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पता होना चाहिए OH उत्ते कितना चार्ज होंदा है नेगेटिव। ये तुसीं +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਹ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ +1 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ FeSO4 ਬਣੇ ਆ, Fe2O3 बने, SO2 बने, SO3 बने, ये सारे उसी जो 9th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਲਫੇਟ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ, NO3 ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ 1 ਨੈਗੇਟਿਵ, OH ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ 1 ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ SO4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ SO4 =-2, ਕਿ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ सल्फेट उत्ते -2। इधर लिख सकते हो कार्बोनेट CO3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੋਗਾ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ। ਫਿਰ Fe ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ FeSO4 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੇਮ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋਗੇ, ਸੇਮ ਟੇਬਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ 2 ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ 1 ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਗਾ, ठीक है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਸੀਗੇ। ਸੇਮ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ 2 ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ 2 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਚੇ ਕਿ 1 ਉਸ 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ 1 ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਿਓ, Fe ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 1, ਆ 1 ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਓ SO4 ਕਿਉਂਕਿ 1, ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ FeSO4। ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਗਾ FeSO4। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ -2 ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ +2। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਫਿਕਸ, ਚਾਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੀ ਹੋਗਾ, ਦੂਜੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਗਾ। ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਜੇ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਆ 2 ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਏਗਾ, A2 ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ Fe1SO4 1 ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ FeSO4। 1 ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ FeSO4, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ Fe2O3 ਹੈ Fe2O3 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ -2 ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਇਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ +3, ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ +3, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ Fe2 ਹੋ ਗਿਆ, O ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3, Fe2O3। ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। FeSO4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ Fe ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਟੇਟ +2 ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਫੈਰਸ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Fe ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਟੇਟ +3 ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਫੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਫੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣੇਗੀ, ਤੀਜੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਸਲਫਰ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਡਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 2, ਡਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 2, ਟ੍ਰਾਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 3। ਡਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 2, ਜੋ 2 ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਜੇ 3 ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਆਕਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਆਕਸਾਈਡ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਕਸਾਈਡ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਡਾਈ ਆਕਸਾਈਡ, ਟਰਾਈ ਆਕਸਾਈਡ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਰਹੇ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, जो कैल्शियम कार्बोनेट है एरी डिकम्पोजिशन स्टडी कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ कैल्शियम कार्बोनेट है हम देखो अपने को रिएक्शन क्या आएगी, कैल्शियम कार्बोनेट ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जब आप हीट करते हैं तो किस कन्वर्ट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी ਅਸੀਂ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, CO2 ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਬਚਿਆ ਕੀ कैल्शियम प्लस एक ऑक्सीजन बची है, इसलिए नाम क्या हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, एक तो क्विक लाइम बन गया, एक अपने को की है लाइमस्टोन। इन ऊपर नाम देंगे कैल्शियम कार्बोनेट का नाम की होता है लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम की है लाइमस्टोन और कैल्शियम ऑक्साइड का नाम की सी क्विक लाइम। आप लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं क्विक लाइम की होंगे, जिवें आप स्लेट लाइम पढ़िया सी, क्विक लाइम पढ़िया, ਉਹਦੇ अपने कोल की होंगे दिस इज लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਲਾइमस्टोन। जो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। क्लीयर है? इस रिएक्शन का जो यूज़ है इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा होंगे, इंडस्ट्री भी यूज़ है। सैकेंड आप यूज़ जो करते हैं क्विक लाइम बनाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जो इनू आप जो यूज़ करना है रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम आप यूज़ करते हैं एज अ थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बाय द नेम ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन भी जाना जाता है। क्यों? ਇਹਦਾ मतलब की है थर्मल। थर्मल का मतलब की होता है, थर्मल मतलब हीट, डीकंपोजिशन मतलब टुटना। इस रिएक्शन को आप हीट की प्रेजेंस के करवा रहे हैं, मतलब उन्होंने गर्म कर रहे हैं ताकि जब कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप इनू की बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। और इसका यूज़ मार्बल के भी होंगे। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का क्विक लाइम का यूज़ होता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है एक तो कैल्शियम, ये रिएक्शन आप लास्ट लेक्चर की सी जिस आप कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। आप लास्ट लेक्चर स्टडी किया कॉम्बीनेशन रिएक्शन, और ये उल्टा रिएक्शन से जिस आप लिखा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलके बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। बट जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो टुट के की बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ये तद होंगी जो आप करते हैं हीट करते हैं। सो इस रिएक्शन में आप ये भी कहते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्योंकि इंडस्ट्रीज में बहुत यूज़ है। ठीक है, इसका नाम थर्मल डीकंपोजिशन क्यों पे? थर्मल मतलब की होंगे हीट, हीट की प्रेजेंस जो डीकंपोजिशन हो, कोई चीज़ टुटे हीट के करके तो उन्होंने की बोलते थर्मल डीकंपोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट हीट की वजह ही टुट रहे हैं, इसलिए नाम की बोलता थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्लीयर है? इसी तरह होर आप एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, जिवें फर्स्ट एग्जाम्पल आप की इस तो पहले वाली एग्जाम्पल आप स्टडी कर चुके हैं। सैकेंड एग्जाम्पल पहले वाली एग्जाम्पल फेरस सल्फेट की की है, हुण आप एग्जाम्पल की कैल्शियम कार्बोनेट की। थर्ड आप करेंगे लैड नाइट्रेट की एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल आप कर रहे हैं डीकंपोजिशन ऑफ लैड नाइट्रेट। लैड नाइट्रेट का फॉर्मूला की होंगे PbNO3 ट्वाइस। लैड नाइट्रेट का फॉर्मूला की होंगे PbNO3 ट्वाइस। ये फॉर्मूला किमें आया वो एग्जाम्पल ले लेंगे Pb NO3, ये दो चीज़ा ने मैं तुम दसा NO3 उत्ते कितना चार्ज होंगे -1, लैड उत्ते कितना चार्ज होंगे +2, लैड उत्ते कितना चार्ज होंगे +2। पॉजिटिव तो नैगेटिव चार्ज तो फिक्स ने, इन्होंने तो चेंज, इन्होंने कोई एक्सचेंज नहीं होना। सिर्फ आ जो नंबर है 2 इधर चल जाएगा और 1 नंबर इस साइड पर आ जाएगा। Pb हो गए 1, NO3 हो गए ट्वाइस 2, NO3 कितने हो गए 2। तो ये कंपाउंड किमें बनया वो आप डिस्कस किया। PbNO3 किमें बनया ट्वाइस क्योंकि लैड उत्ते होंगे +2 चार्ज, NO3 उत्ते -1 चार्ज। तो जो पॉजिटिव और नैगेटिव साइन वो फिक्स है, सिर्फ एक्सचेंज को उन्होंने 1 इस साइड पर चल जाएगा, 2 उस साइड पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो NO3 के नीचे 2 आ गया, लैड के नीचे की है 1। तो PbNO3 लैड नाइट्रेट है जो अपन हीट करते हैं। दिस इज लैड नाइट्रेट, इसका नाम की है लैड। Pb का सिंबल है लैड का, इन्हों आप बोलते नाइट्रेट। जो लैड नाइट्रेट वो हीट करते हैं तो ये की निकलता है, एक तो अपने को NO3 चो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, NO2 गैस बाहर निकलेगी।
एक कली ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। थर्ड जी चीज़ है वो की बन रही है लेड प्लस ऑक्सीजन, लेड ऑक्साइड की बनेगा लेड ऑक्साइड। तो 3 प्रोडक्ट्स अपने को बनते हैं जो आप लेड नाइट्रेट ਨੂੰ हीट करते हैं तो ये डीकंपोजिशन जो होएगी तो 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। फर्स्ट इज लेड ऑक्साइड, सेकंड इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, थर्ड इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस, ये भी NO2 भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेड ऑक्साइड सॉलिड है और लेड नाइट्रेट भी आप सॉलिड फॉर्म च लिता सी। ये जो नाल मैंशन किए होंगे ये मतलब सॉलिड फॉर्म दे विच है, ये भी सॉलिड फॉर्म च है, जी मतलब गैस फॉर्म च है, O2 भी किस फॉर्म च है, गैस दी फॉर्म च है। ठीक है, ये नाल उन्हें स्टेट्स मैंशन की होंगे ने किहड़ी स्टेट दे विच प्रेजेंट है। क्लीयर है। हुण जो इन हीट किया हाँ सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। बैलेंसिंग देखो अपने को नाइट्रोजन किन्ने है 2, बट इस साइड ते किन्ने है ओनली 1, इन 2 मल्टीप्लाई कर देंगे हैं। ठीक है, हुण अपने को की है लेड नाइट्रोजन का बैलेंस हो गए, बट ऑक्सीजन दे देखो किन्ने है इस साइड ते 4 इस साइड ते है, 2 इस साइड ते होर कितने 6 और 1 7, बट इस साइड ते किन्ने है सिर्फ 6, किन्ने है 6। इसलिए अपन की करांगे जिस साइड ते घट ने उन्होंने 2 ना मल्टीप्लाई कर देंगे हैं। जब अपन 2 ना मल्टीप्लाई करते हैं लेड किन्ने हो गए 2, इस साइड ते भी लेड किन्ने हो गए 2, बट नाइट्रोजन किन्ने हो गए 4। तो आप इतने की करांगे बैलेंसिंग चेंज करके 4, मतलब इन्हों 2 ना होर मल्टीप्लाई करता। पहला आप 2 ना मल्टीप्लाई किया सी, एक होर 2 ना मल्टीप्लाई किया ताकि अपने को क्या आ जाए 4। क्लीयर है। हुण देखो लेड किन्ने 2, लेड 2 है, नाइट्रोजन किन्ने 4 है, ऑक्सीजन काउंट करो 4 × 3 12 ऑक्सीजन इस साइड ते 2 इस साइड ते है, 2 और 8 कितना हो गया 10 10 + 2 12 ऑक्सीजन अपने को इस साइड पे बैलेंस है। तो दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन जिस अपने को बैलेंसिंग हुई है। तो 2 लेड नाइट्रेट मॉलिक्यूल टूट के 2 लेड ऑक्साइड 4 NO2 और 1 O2 मॉलिक्यूल जड़े और छड़ दे रिलीज होंगे हैं, डीकंपोजिशन होंगी है इन्हों। ठीक है, तो दिस इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्लीयर है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन अपन क्यों बोले, क्योंकि एक प्रोडक्ट जो है वो फर्दर टूट के 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं और जी रिएक्शंस हीट की प्रेजेंस के विच होंगी उन्होंने बोलते थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो पेपर सानू ये भी आ सकता है गिव एग्जांपल थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना, थर्मल डीकंपोजिशन का मतलब जी हीट की प्रेजेंस के विच टूटते हैं। ठीक है, और थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस हो जाएगी। ओके, इसी तरह आप अज हुण जो करना नैक्सट टॉपिक इलैक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलैक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलैक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ मतलब ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਕਿਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਲੀਵੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲਾਈਸਿਸ मतलब ब्रेकडाउन हो जाएगा और वाटर जो टूटेगा तो 2 मॉलिक्यूल बनाता है। वाटर टूट के एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है, दूजा ऑक्सीजन। वाटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ प्रेजेंट ਹੁੰਦਾ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होंगे हैं। सो जो वाटर टूटेगा वो की बनाएगा या तो हाइड्रोजन बनाएगा नाल दूजा की बनाएगा ऑक्सीजन, और अदर ऑप्शन नहीं है क्योंकि पानी है, पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है। सो आपको 2 ही प्रोडक्ट बनते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तद बनते हैं जो आप करंट पास करते हैं तद जाके अपने को की है वाटर जो है वो 2 गैसेज कन्वर्ट हो जाता दैट इज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इनू आप हम डिस्कस करांगे इलैक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर नू। हुण आप डिस्कस कर रहे हैं कॉम्बीनेशन रिएक्शन तो बाद डीकंपोजिशन रिएक्शन की ही एग्जाम्पल दैट इज इलैक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जी डीकंपोजिशन रिएक्शन की आप 2-3 एग्जाम्पल स्टडी की, उसके बाद 4th एग्जाम्पल स्टडी कर रहे हैं दैट इज इलैक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जो पानी तोड़ते हैं तो पानी तो की बनता है इलैक्ट्रोलिसिस मतलब करंट की प्रेजेंस में, लाइसिस मतलब टुटना किहदा वाटर का। ये चीज़ आप एक डायग्रामेटिकली प्रॉपर इनू एक्सप्लेन करांगे कि इलैक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर किवें हुंदी है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर च आ भी जाता इलैक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का क्वेश्चन। अपने कोल की है, अपने कोल वाटर है, वाटर नू आपां करंट इलैक्ट्रिक करंट पास करांगे, उस इलैक्ट्रिक फील्ड पास करांगे, इलैक्ट्रिक करंट पास करांगे तो वह 2 मॉलिक्यूल्स दे विच टुट जांदा। एक हुंदा हाइड्रोजन, दूजा ऑक्सीजन। ये दोनों गैसेज है, दोनों गैसेज स्टेट दे विच है और वाटर जो कि फॉर्म च है लिक्विड स्टेट दे विच है। तो जो वाटर लिक्विड स्टेट च है जो आप करंट पास करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स टुट जाता है। टुट जाना लाइसिस मतलब होंगे ब्रेकडाउन, मैं बार बार टर्म यूज़ कर रही हूँ। लाइसिस लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन टुटना, इलैक्ट्रो मतलब इलैक्ट्रिक करंट। ठीक है, किहदा टुट रहा है, कौन टुट रहा है, वाटर टुट रहा है, H2 टुट रहा है, किच टुट रहा है हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन दे विच। ठीक है, 2 गैसेज रिलीज होंदियां ने। यही चीज़ उन्होंने प्रॉपर एक्सपैरीमेंटली दसी हुई है। आप एक प्लास्टिक मग ले लेना, ठीक है, प्लास्टिक मग लो, वो नीचे 2 होल्स कर लो,
नीचे 2 होल किते, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਰਬਰ ਕੋਕ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਰਬਰ ਸਟਾਪਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਬਰ ਸਟਾਪਰ ਉੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਕਾਰਬਨ ਰੋਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਬਨ ਦੀਆਂ ਰੋਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਕਾਰਬਨ ਰੋਡਸ ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਥੀਸ ਆਰ 2 ਕਾਰਬਨ ਰੋਡਸ, ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਰੋਡ। ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਦੀਆਂ 2 ਰੋਡਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਉਸ ਸਟਾਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਬਰ ਸਟਾਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। 2 ਰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਬਰ ਸਟਾਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਰੋਡਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਫਰਸਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ 2 ਕਾਰਬਨ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਹੋਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵਾਇਰ ਦੇ ਥਰੂ, 6 ਵੋਲਟ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਥੋਡ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੈਥੋਡ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਐਨੋਡ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ? 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਕੋਈ 2 ਰੋਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਐਨੋਡ ਐਂਡ ਕੈਥੋਡ। ਐਨੋਡ ਐਂਡ ਕੈਥੋਡ। ਜਿਹੜੀ ਐਨੋਡ ਹੈ ਔਰ ਕੈਥੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਇਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਥੋਡ ਵੱਲ ਕਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਆ ਰਹੇ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੈ ਐਨੋਡ। ਐਨੋਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ? ਆਕਸੀਜਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨੋਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਕੈਥੋਡ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ, ਵਾਟਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਆਇਨਸ ਬਣਦੇ, ਇੱਕ ਬਣਦਾ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ, ਇੱਕ ਬਣਦੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ O2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। 2 ਆਇਨਸ ਬਣਦੇ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰजेस ਅਟਰੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਊਗੀ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਐਨੋਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ। ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਕ ਕੈਥੋਡ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਆ 2 ਟਰਮੀਨਲਸ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ 6 ਵੋਲਟ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 6 ਵੋਲਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਮਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਪਾਣੀ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆ 2 ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵਰਟਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਗਲਾਸ ਦੀ ਟਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ। ਇਹਨੂੰ ਇਨਵਰਟਡ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਨਵਰਟਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੂੰਹ ਨੀਚੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? 2 ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਇਨਵਰਟਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਸ ਆਪਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ ਕਾਰਬਨ ਰੋਡ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਭਰੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਬਬਲਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ? ਬਬਲਸ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਏ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਬਬਲਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ 2 ਸਰਕਲਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਸਫੇਅਰਸ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬਬਲਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਬਲਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੈਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਬਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪਾਣੀ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਬਲਸ ਬਣਨਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੈਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੈਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ? ਬਬਲਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। और बबल्स बनने का मतलब की है गैसेस बन रही ने, एक बन रही है हाइड्रोजन गैस, दूजी बन रही है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन गैस बन रही है, ऑक्सीजन गैस बन रही है, किवें पता चलेगा सानू? अगर अपने को जिहड़ी गैस आ रही है उन्होंने आपां की करांगे, कलैक्ट कर लांगे। एक साइड से आप हाइड्रोजन गैस नूं कलैक्ट कर लेना, दूजी साइड से आप किहनूं कलैक्ट कर लेना? ऑक्सीजन गैस नूं। दोनों कलैक्ट कर लिया अलग अलग, ठीक है। जो हाइड्रोजन गैस नूं आपां मैस्टिक ऑन करके या फिर तुसीं छोटा या कोई स्पिरिट लैंप यूज़ करके उहदे नाल नूं की करके देखो, बर्न करके देखो, गैस पास करो। अगर तो पॉप साउंड आता है, जो पटाखे बजते हैं छोटे छोटे जे, अगर पॉप साउंड आता है इसका मतलब अपने कोल की हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अगर सिर्फ अग जड़ी है वध रही है तो मतलब की है ऑक्सीजन है, पर कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। जो तो साउंड प्रोड्यूस होता है पॉप साउंड, तो केड़ी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। जितने साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहे वो केड़ी गैस है? ऑक्सीजन गैस है। बस पर ऑक्सीजन हैल्प कर दी, किनू हैल्प कर दी? अग नूं होर वधन दे विच, ठीक है। तो ये सिर्फ ये जी गैस है कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, बट हाइड्रोजन गैस की प्रोड्यूस करेगी? पॉप साउंड। इट बर्न्स विद पॉप साउंड, जो बर्न होएगी नाल नाल की प्रोड्यूस करेगी? पॉप साउंड, ठीक है।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਔਰ ਐਨੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ। ਦੋ ਗੈसेस अपने को कलैक्ट होंदियां ने, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये एक्सपैरीमेंटली वेरीफिकेशन है कि जो वाटर दी आपां उह च करंट पास किया तो अपने को दो गैसेस बनियां, एक गैस जो कनैक्ट हो रही है एनोड के उत्ते, एक इलैक्ट्रोड के उत्ते, तो दूजी गैस जी कितने कलैक्ट हो रही है, कितने इकट्ठी हो रही है, कैथोड के उत्ते। ठीक है, इन्हों आप टेस्ट ट्यूब के इन्वर्टेड फॉर्म के जो टेस्ट ट्यूब रखा उस ऑब्जर्व कर रहे हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, क्योंकि की बन रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं। तो जो बबल्स बनगे तो ही सानू पता चलूगा कि कोई गैस बन रही है, अगर बबल्स नहीं बनते तो मतलब कोई गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो करंट पास करना, स्विच ऑन भी करना है। ठीक है, ग्रेफाइट रोड्स का मतलब कार्बन रोड्स ही है। टेस्ट ट्यूब मैंशन की हुई ने, वाटर भरिया हुआ है, रबर स्टॉपर आप यूज़ किया, वो सारा कुछ आप दस्या हुआ है कि चीज़ आप इस अपरेटस के इस एक्सपैरीमेंट आप यूज़ की है। क्लीयर है, एक आह रिएक्शन करनी है कि वाटर टूट के मारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कित्थे कित्थे इलैक्ट्रोड केड़ी इलैक्ट्रोड उत्ते केड़ी गैस कलैक्ट हो रही है वो आप नोट कर लेना। क्लीयर है, इन्होंने बोलते इलैक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो अज आप जो टॉपिक डिस्कस किया है वो क्या टॉपिक है, डीकंपोजिशन रिएक्शंस। जो आप किया है टॉपिक वो की है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये आप 4 एग्जाम्पल्स कर चुके, जो 4th एग्जाम्पल दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस आप पढ़े इलैक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यह कल्ला ही क्वेश्चन आ जाता पेपर कि इलैक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की होंगी है। नैक्सट आप जो टॉपिक डिस्कस करना वो की है, डिसप्लेसमेंट ते डबल डिसप्लेसमेंट का टॉपिक है। थर्ड टाइप आप कर रहे हैं डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। डिसप्लेसमेंट रिएक्शन आप पहला भी डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक आप डिस्कस किया कि डिसप्लेसमेंट का मतलब की होंगे, एक ने आगे दूजे को डिसप्लेस करता, जिवें ए बी सीगा। ठीक है, इन्होंने जो सी ने रिएक्ट करवाया तो सी ने किया बी नाल आके, बी जो सी दे नाल चला गया, ए नूं अलग करता। देखो अपनी पोजीशन चेंज कर ली, बी ने किया सी दे नाल आके लग गया, तो अपने को बन गया बी सी और ए कला रह गया। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब जो सी सीगा वो ज़्यादा रिएक्टिव सी ए नालों, उन्हें किया सी ने बी नूं लैके चला गया। अज जो सी आया ना, पहले ए बी इकट्ठे सीगे दोनों। ठीक है, जिद्दी सी आया बाहरों दी उन्हें बी नूं पकड़ के नाल लै गया, तो अपने को बन गया सी बी। इन्हों इस तरह लिख सकते सी बी, क्योंकि ए तो बाद बी सी तो सी तो बाद बी लिखांगे, तो सी बी अपने को बन गया, ए कला रह गया। ਇਹਦਾ मतलब सी ने डिसप्लेस करता किनों, सी डिप्लेसिस किनों डिसप्लेस किया ए, सी ने किनों डिसप्लेस करता ए नूं। रीजन की है, बिकॉज सी इज मोर रिएक्टिव, सी इज मोर रिएक्टिव देन ए नालों जो सी है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसी करके सी ने बी नूं नाल लैके चला गया। पहले ए और बी इकट्ठे सी, बट जिद्दी सी आया सी बी नूं नाल लैके चला गया। ਇਹਦਾ मतलब की किया सी ने डिसप्लेस करता ए नूं, डिसप्लेसिस ए बिकॉज सी इज मोर रिएक्टिव दैन ए। क्लीयर है, तो ये डिसप्लेसमेंट एग्जाम्पल आप जब लवांगे, बेसिक एग्जाम्पल आप लेके चल रहे हैं। जो रियल एग्जाम्पल है, आयरन नेल नूं आपां जे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन च पाते हैं, आयरन नेल जिहड़ी हुंदी है लोहे की जो किल हुंदी है, उन्होंने आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन च पाते हैं। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो होंगे ब्लू कलर का होंगे, ब्लू कलर का सोल्यूशन है। जो आप आयरन नेल कॉपर सल्फेट सोल्यूशन च पावांगे, हौली हौली जो ब्लू कलर है घटना शुरू हो जाता है। तुसीं नॉर्मली एक बिकर लो, ठीक है, उस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लो, वो आयरन नेल डिप करके रख दो, तो तुम देखोगे थोड़ी थोड़ी देर बाद जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का वो फेड होएगा, ब्लू कलर प्रॉपर ब्लू नहीं रहेगा, वह कलर हौली हौली की होना शुरू घटना शुरू हो जाए, फिक्का पैना शुरू हो जाएगा। ਇਹਦਾ रीजन की है, जो आयरन उन्हें कॉपर डिसप्लेस करता, कॉपर जगह आयरन आके लग गया। की हो गया, कॉपर बाहर कटता, जगह खुद आके लग गया, तो कॉपर कला रह गया हुण, क्योंकि आयरन ओदी जगह आके लग गया। तो हुण देखो हौली हौली कॉपर, क्योंकि कलर की वजह सी कॉपर सल्फेट की वजह, पर जो कॉपर सल्फेट जगह की बनना शुरू हो गया, फेरस सल्फेट, किनू की बोलते आपां, फेरस सल्फेट। अपने को की बनना शुरू हो गया, फेरस सल्फेट बनना शुरू हो गया। ਇਹਦਾ मतलब कॉपर नूं किने डिसप्लेस करता, आयरन ने। आयरन डिसप्लेसिस कॉपर, क्यों, क्योंकि आयरन जो मोर रिएक्टिव है, जी चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होती है वही की करती है, दूजे डिसप्लेस करती है। आयरन इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, सो आयरन डिसप्लेसिस कॉपर। तो आयरन ने डिसप्लेस क्यों किया कॉपर नूं, हो जाएगा खुद क्यों आगे लग गया, क्योंकि आयरन की ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो जी चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होएगी वही डिसप्लेस करेगी। सिमिलरली आप एग्जाम्पल है जिंक की,
ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕਾਪਰ ਪਲਸ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਾਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਆ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਨੇ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕੀਤਾ। क्यों, क्योंकि जिंक और आयरन दोनों ज़्यादा रिएक्टिव सी कॉपर नालों। सो आयरन और जिंक जोड़ा है उन्होंने दोनों ने आके कॉपर डिसप्लेस करता, वो जगह खुद आके लग गए, तो इन्होंने बोल रहे डिसप्लेसमेंट। क्लीयर है, ये जगह खुद आके लग गए, इन्होंने बोलते हैं डिसप्लेसमेंट एक्शन। एक कुछ एग्जाम्पल आप की डिसप्लेसमेंट एक्शन दियाँ। तो डिसप्लेसमेंट एक्शनस की होंदियां ने जिहदे विच जिहड़ी चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव है वो दूजे नूं की कर देगी, डिसप्लेस कर देगी। क्लीयर है, डिसप्लेसमेंट एक्शन की होंदियां ने। नैक्सट लैक्चर आप पढ़ांगे डबल डिसप्लेसमेंट एक्शनस किहड़ी होंदियां ने, नाल आप ऑक्सीडेशन ते रिडक्शन एक्शन दे उत्ते फोकस करांगे। अज दे लैक्चर आप पढ़िया डिसप्लेसमेंट एक्शनस बारे, उस तो पहले आप डीकंपोजिशन बारे पढ़िया सीगा। नैक्सट लैक्चर आप स्टडी करांगे डबल डिसप्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। थैंक यू।